Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET, ICR NET, SLATE, TGT, PGT, TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon. This channel is especially run by the professional expert. If you want to be any kind of study material or live classes, you can mail us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us our Facebook page, Instagram page and join the Telegram group for more updates. We are also providing the previous year question bank, practice set, quick revision note for the various competitive exam of the home science. As you know that NTA NET has been announced date for the exam, that is your from the September. सो बेसिकली हम बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल्स लॉन्च कर रहे हैं लाइक योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, टेस्ट सीरीज़. तो अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, दैट इज़ 7426888640, ये नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है. आप वहाँ से चेक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं फॉर द मोर टेस्ट सीरीज़ एंड द क्वेश्चन सीरीज़ और previous question series. Okay, so today we will discuss about the also, because अब आपको previous year question solve करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, because this is a very important from the exam point of view. As in our previous video, we have a discussion about the food and nutrition previous year question, that is from the 2012, and in this video we have discuss about clothing and textile. So as you can see that the first question that is asking for that which of the following is double pointed dart. So निम्नलिखित में से कौन सा एक डबल नुकीला डार्ट है. अब इसमें से यू कैन सी द ऑप्शंस इज देयर ABCD, 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं एग्जाम में. फर्स्ट वन इज योर फ्लेंच डार्ट, सेकेंड वन इज़ योर फ्रेंच डार्ट एंड थर्ड वन इज़ योर फिश डार्ट एंड फोर्थ वन दैट इज़ योर ड्रेस मेकर. तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल अलग साउंड कर रहा है, दैट इज़ योर ड्रेस मार्क. सो डायरेक्टली यू कैन इट जस्ट ड्रेस मेकर्स एक्चुअली. सो डायरेक्टली आप इसको हटा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो हो सकता है. तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट इज़ अ डबल पॉइंटेड डार्ट. तो राइट आंसर इज दैट, राइट आंसर इज योर B, that is the French dart. अब जितने भी ऑप्शंस होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके साथ साथ और भी जो ऑप्शंस दिए होते हैं आप उनके बारे में भी पढ़ें. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो आपसे उस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंच डार्ट क्या होता है. मे बी इन द नेक्स्ट ईयर दे विल आस्क यू अबाउट द व्हाट इज़ फ्रेंच और डिटेल अबाउट द फ्रेंच. सो बेसिकली एज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर द डबल पॉइंटेड डार्ट, तो ये बहुत क्लियर हो गया कि फ्रेंच डार्ट जो होती है वो डबल पॉइंटेड होती है. इट इज़ लाइक इट इज़ समथिंग मोर इलोंगेटेड एंड इट इज़ लाइक देन स्टैंडर्ड लाइक बर्स्ट डार्ट. सो इट इज़ मोर इलोंगेटेड स्टैंडर्ड बर्स्ट डार्ट. जो आपकी बर्स्ट डार्ट होती है बेसिकली जब हम स्विंग करते हैं तो जो डार्ट बनती है तो बेसिकली उससे ज़्यादा इलोंगेटेड होती है. तो बेसिकली आपकी जो स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बॉडीज लाइक योर साइड seam or like near the waistline and it is end up near the bust point. It is basically for the effectively combine a bust dart and a waist dart into one. So that is basically known as a French dart. Now the another option is, that is your right answer actually, number B is the right answer. Now coming to the next topic, because it is also very important from the exam point of view, what is the flange dart. Flange dart is basically tuck at the back shoulder or you can say that the armhole shirt or blouse. Now there is another option also, that is your fish dart. Fish dart क्या होती है, basically it is a eye or double pointed dart. These are used for the dresses or you can say that like for the jackets that is fit at waist while still is just stopping both bust and hips. So basically you can say that it is a joint together at the widest end and you can say how that, see, it is like that, it is like this. This is your known as a fish dart. Okay, so now this is very important. You come to know about the three more other topics. That dressmakers is a very common word, so I don't think so there is explanation for the dressmakers. So flange, and what is the flange dart, what is the fish dart and what is
the French dart. So it is very clear, option is B is the right, that is your French. This is the double knotted, and it is like which is like combining the burst dart and burst waist dart into one. जो आपकी burst dart होती है और आपकी जो waist dart होती है उसको साथ में जो कंबाइन करती है उसको बेसिकली हम फ्रेंच डार्ट कहते हैं, और ये डबल नुकीली डार्ट भी कहलाती है, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, that is the very easy one. Following chemicals used in the textile industry are hazardous, right? So कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त रसायन खतरनाक है। तो इसमें कौन से ऐसे रसायन हैं जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो देयर आर वेरियस कंपाउंड्स आर रिटन ऑन दैट, लाइक योर azo compound, your enzyme, chlorine compound and hydrogen peroxide, and various answers are given on that. So the right answer is your option D is your right. Actually this is the right answer, that is number 1 and number 3 are the correct, like your azo compound and your chlorine compound. So basically azo dyes are banned because it is containing the carcinogenic compound that is a cancerous for the body and it is undoubtedly harmful for the body. So basically ये जो आपके रसायन होते हैं, एजो हो गया या क्लोरीन हो गया, या आपके हार्मफुल कंपाउंड होते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो इसलिए इसको मतलब ये हैजार्डस माने जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। Now come to the another question, that is the which of the following stitches are used in the चिकनकारी embroidery। एम्ब्रॉयड्री सेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम चिकनकारी की बात करेंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारी एम्ब्रॉयड्रीज होती हैं जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट लिमिट टू द योर स्टडी, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका एग्जाम डिमांड करता है आपको बस वही पढ़ना है इसके लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, चिकनकारी की कढ़ाई में निम्नलिखित में से किस नाके का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इज दैट कमल कढ़ाई, नेगी, फांदा, बिजली एंड पेचनी। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस आर गिवन एंड वेरियस ऑप्शंस आर फॉर द आंसर, लाइक 1, 3, 4, 2, 2nd, 4th, 5th। सो जस्ट अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ रखा है तो आपको ईजिली पता होगा कि कौन सा राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, दैट इज़ योर 3rd, 4th, 5th, लाइक योर फांदा, बिजली एंड पेचनी, दैट इज़ यूज्ड इन द चिकनकारी। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने बिल्कुल भी थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है एम्ब्रॉयडरी के बारे में तो आपको पता होगा कि कमल कढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कमल कढ़ाई हैज़ अ डिफरेंट रोल बिकॉज इट इज़ बेसिकली डिनोटेड द लोटस शेप। ओके, सो जब आप लोटस एम्ब्रॉयडरी की बात करते हो जो इसके नेम से ही सजेस्ट होती है, दैट इज़ योर नोन एज अ कमल कढ़ाई। नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज़ द नेगी। नेगी कौन सी कढ़ाई होती है? देयर इज़ अ वन मेजर कैटेगरी फॉर द नेगी, दैट इज़ योर नोन एज अ कसूती। ओके, कसूती एक एम्ब्रॉयडरी होती है और कसूती की ही एक वैरायटीज़ होती हैं जिसको हम गनवती, मुर्गी, नेगी और मेंथी कहते हैं एक्चुअली। सो इसकी जो होती हैं बेसिकली 4 होती हैं, जिसमें से एक टाइप जो होती है वो नेगी होती है, ठीक है, और इसकी ब्रॉडर कैटेगरी होती है कसौती। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है चिकनकारी के बारे में, तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके डायरेक्टली क्या हुए, कट गए। Now come to the 3 more, that is your फांदा, बिजली and पेचनी। So right answer is 3rd, 4th and 5th. So option C is the right answer, that is written down the 3rd, 4th, 5th. Now come to the फांदा, बिजली and पेचनी। तो अब आपको इनके बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे आपको ये पता चल गया कि नेगी क्या होती है, कमल कढ़ाई क्या होती है, कमल कढ़ाई में लोटस शेप होता है। नेगी में जो होता है बेसिकली एक ऑर्डिनरी स्टिच होती है विच इज़ नोन फॉर द बेसिकली ड्रॉनिंग or like a weaving stitch which is basically run in the long and short straight lines. So that is basically characteristics of the negi. And what is the meaning of the ne, that is also important from the exam point of view, that is in term of the weave in the
can reach, that is known as the meaning of the name. Okay, now come to the another description, that is your फांदा. फांदा क्या होती है? फांदा इज बेसिकली एक इम्बोस्ड स्टिच होती है जो कि आपके मिलेट को और एक रेज्ड इफेक्ट देती है. जब आप इसको बनाते हो ना तो एक ऐसा उभरा हुआ जिसको हम कहते हैं रेज्ड इफेक्ट ये क्रिएट करती है. एंड बेसिकली एज इट्स फॉल्स अंडर द नॉटेड स्टाइल एट अ टाइम स्टिचेस. सो बेसिकली एक नॉट स्टाइल का आपका स्टिच इसमें से निकल के आता है जो कि रिपीट होता है और एक कई स्पॉट पे भी ये रिपीट हो सकता है और एक पर्ल लाइक जो होता है वो इफ़ेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है. तो बेसिकली आप जब फांदा की बात करते हैं तो फांदा में आपका एक पर्ल लाइक इफेक्ट क्रिएट होता है और ये चिकनकारी का ही टाइप होता है जिसमें आप इसको मिलेट से रिजेंबल करते हो और इसके साथ साथ इसका एक रेज इफेक्ट भी आता है जब ये अंदर के साइड जाता है और एक नॉटेड स्टाइल भी निकल के आता है. सो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फांदा. नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज़ योर बिजली. बिजली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? बेसिकली एक ये बटन होल स्टिच होती है, स्ट्रेच विथ लॉन्ग थ्रेड्स टू गिव इट अ शेप ऑन एन ईयर रिंग. सो बेसिकली एज यू कैरेक्टराइज इज इट इज़ look like the button hole stitch and it is also under come as a chikankari stitch. The last one, that is your pechni. Pechni is sometimes called as a tapechi. Okay, that is a word, that is a tapechi. Okay, तो इसको हम बोलते हैं रनिंग स्टिच भी इसको हम बोलते हैं. तो जब आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके जो स्टिच बनती है उसको हम क्या कहते हैं? रनिंग स्टिच कहते हैं. ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन द एवरी ऑप्शंस फॉर यू, लाइक व्हाट इज द कमल कढ़ाई, नेगी, फांदा, बिजली, एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दैट इज योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फांदा, बिजली एंड पेचनी कम्स अंडर एज your chikankari, and kamal kadai itself a different kind of, that is its name like indicated, and negi is under come as a kasuti embroidery. There are various kinds of kasuti are in the embroidery section, and there is name as a ganvati, murgi, negi, methi. Okay, so now come to the another question. See, this is also very easy. This kind of questions are little bit confusing, but it is very important from the exam point of view. That is, प्लीसे हैज़ अ परमानेंटली पुकर्ड सरफेस. प्लीसे में एक स्थायी रूप से, दिस इज़ नॉट द पक, मतलब लाइक पकड़ जैसे एक उभरा हुआ, खिंचा हुआ, तना हुआ जो आपका इफेक्ट होता है वो आता है बेसिकली. तो ये सही है कि नहीं सही है? प्लीसे हैज़ अ परमानेंटली पुकर्ड सरफेस. ओके, फाइन. एंड रीज़न इज़ फॉर दैट कास्टिक सोडा प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक श्रिंक्स द फैब्रिक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. राइट इज द लाइक बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट. सो ये बात सही है. प्लीसे जो होता है वो आपको एक परमानेंटली पकड़ देता है सरफेस पे, और इसका रीज़न ये होता है कई बार कि सोडा जो होता है वो कास्टिक सोडा प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक श्रिंक्स द फैब्रिक. ओके, सो बेसिकली कपड़े पर मुद्रित कास्टिक सोडा कपड़े को सिकोड़ता है. सो दिस इज द राइट आंसर. बोथ स्टेटमेंट्स आर द राइट. ओके, now come to the another question, that is again your assertion and reasoning. लॉक स्टिच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्टिचिंग स्ट्रेच फाइबर. ये बहुत ही सिंपल है और क्लियर है. लॉक स्टिच क्या होती है कि जब आप किसी भी कपड़े को जब आप स्विंग करते हो, स्टिच करते हो, तो बेसिकली दिस इज़ अ स्टिच विच इज़ मेड बाय स्विंग मशीन बाय फॉर्मली लिंकिंग टुगेदर टू थ्रेड्स और स्टिचेस. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी लॉक होती है स्टिच जिसमें आप इसको फॉर्मली टू थ्रेड्स के थ्रू लॉक करते हो. दैट इज बेसिकली नोन एज अ लॉक स्टिच. बट इज इट अप्रोप्रिएट फॉर द स्ट्रेच ऑफ द फैब्रिक? जैसे इसमें पूछा है कि स्ट्रेच फैब्रिक के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त है, एंड द रीजन इज बिहाइंड दैट लॉक स्टिच स्ट्रेच द फैब्रिक स्ट्रेच. ओके, सो फैब्रिक स्ट्रेच के साथ स्टिच भी स्ट्रेच होती है. ओके, नो. सो द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन लाइक योर डी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज द रॉन्ग. इट मीन्स दैट कि आपका जो ए है, आपका जो ये स्टेटमेंट है वो भी गलत है. लॉक स्टिच जो होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती है स्ट्रेच फैब्रिक के लिए, और इसके साथ साथ ये जो आपकी लॉक स्टिच होती है वो फैब्रिक के साथ साथ स्ट्रेच भी नहीं होती है. तो जब पहला ही गलत हो गया तो अनडाउटली आपका ये जो रीज़न ये बता रहे हैं स्ट्रेच फैब्रिक के साथ, ये भी यहाँ पे गलत है. सो बेसिकली लॉक स्टिच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टिचिंग ऑफ द स्टिच फैब्रिक, एंड ऑल्सो it is not stretching with the stretch fabric. So both like statements are wrong. So option A and R is the wrong, right? Now come to the another question, that is very easy.
गिव द सीक्वेंस ऑफ डेनिम वॉशिंग, दिस इज़ द राइट समथिंग, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए. ब्लीचिंग क्या होती है, सॉफ्टनिंग क्या होती है, डिसाइजिंग, स्काउरिंग. सो व्हेन आई आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट पुट इन योर माइंड लाइक प्रोसेसिंग, whenever you are reading the processing, processing of the dyeing, processing of the fiber, fabric, whatever. So just read the actually in the mind what is the first and what is the last. Sometimes what we just come to know, जब भी आप किसी फाइबर को या किसी फैब्रिक को आप उसको रेडी करते हो तो सॉफ्टनिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं लास्ट में आती है. और इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऐसा ऑप्शन जो है वो सॉफ्टनिंग के पास ही कम आ रहा है, जैसे मतलब सॉफ्टनिंग ही उसमें लास्ट ऑप्शन दिख रहा है. इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो आप लास्ट में कर सकते हो. मतलब आप कपड़े को जब एकदम सेट करते हो, मुलायम करते हो, तो वही आपका सही इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. सो द राइट आंसर फॉर दैट, एज यू कैन सी दैट कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो दोनों में कॉमन हो रहा है, बट वी कैन नॉट से दैट कि ए एंड बी. सो आपको ये जज करना होगा तो कहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे. सो बेसिकली जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है. तो इसमें जैसे आप देखोगे डिसाइजिंग क्या होती है और स्काउरिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ दैट आपको जानना बहुत ज़रूरी है. डिसाइजिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर द लाइक इफ़ यू आर गिविंग द एनी फिनिशिंग प्रोसेस टू योर फैब्रिक लाइक स्टार्च और एनीथिंग, सो यू हैव जस्ट रिमूविंग the particular finish or starch from the fabric and fabric will be in the original mode. Scouring is the process where you are just removing the like brighten the fabric due to the your using by the detergent or any kind of chemical, so it will be helpful to brighten the fabric. So first stage will be the fifth number, that is your decising and scouring, and the next one that is like your sixth number, that is enzyme wash or stone wash. So if the fabric have or fiber have or denim have any like as it is question is asking for the denim washing, so if the denim has having any enzyme or stone, so basically like any dirt or any like that, so you can do it through the enzyme wash or stone wash. And then come to the second, that is clean up, adjust and desired effect. So whatever you want, that is your next one. Then bleaching is also important before the dyeing, because if you want to be dye your fabric, then before that bleaching is important. Okay. And then after the bleaching, that is your dyeing is important, and last one, that is your softening. So this kind of pattern you can see in the question, and you can easily take it with your sense of humor to solve the question. like कि आपका फर्स्ट में क्या हो सकता है, तो जैसे फर्स्ट में जब भी आप किसी कपड़े की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हो, आइदर दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डेनिम ओनली, बट यू कैन यूज दिस ट्रिक टू एनी वन like fiber processing or like that any other dyeing printing matter. What should be the first step for the solving the this kind of particular question? So decising and scouring is the most suitable for the first step, and then you can correlate to the every option to each other. Now come to the next question, that is your give the correct sequence of the cotton processing. This is the most common and popular question. So what is the singeing, what is the printing, bleaching, scouring, cutting and heat setting and desizing? So this is something which is very most popular, various time asked question. So first you have to know about the meaning of these words. So if you have not read till that what is the scouring, what is the singeing, so just go and read. So scouring क्या होती है, scouring जो आपकी होती है, तो बेसिकली इसको जैसे मैंने पहले बताया कि क्लीन करना या ब्राइटन करना, फैब्रिक को साफ करना अच्छे से, मतलब क्लीन अप करके रखना, दैट इज बेसिकली नोन एज अ स्काउरिंग. व्हाट इज द सिंजिंग? सिंजिंग को बेसिकली हम एक अनदर टर्म में भी डालते हैं जिसको हम बोलते हैं गैसिंग एक्चुअली. ठीक है, गैसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको हम इसी के वर्ड में यूज़ करते हैं. कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको उसने सिमिलर वर्ड दे दिया एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सिमिलर वर्ड. तो जैसे सिंजिंग का सिमिलर वर्ड जो होता है दैट इज गैसिंग. सो यू हैव टू अवेयर अबाउट द सिमिलर वर्ड ऑल्सो. तो सिंजिंग क्या होती है? बेसिकली सिंजिंग इज अ प्रोसेस अप्लाइड टू बोथ yarns एंड फैब्रिक टू प्रोड्यूस अ इवन सरफेस बाय बर्निंग ऑफ प्रोजेक्टिंग फाइबर्स, yarns एंड फज. सो बेसिकली जब आप सिंजिंग करते हो तो सिंजिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप उसको प्रोसेस के थ्रू, और या किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप यार्न पे भी अप्लाई कर सकते हो, फैब्रिक पे भी अप्लाई कर सकते हो. तो बर्निंग ऑफ प्रोजेक्ट के थ्रू आप उसके जो भी फाइबर्स होते हैं, जो भी यार्न्स होते हैं, जो भी एंड्स होते हैं, आप उसको जो फज होते हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हो. एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज अ सिंजिंग. नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. सिंजिंग किस पे अप्लाई हो सकती है? तो सिंजिंग आपकी यार्न पे भी हो सकती है, फैब्रिक पे भी हो सकती है, आपके क्या कहता है फाइबर पे भी हो सकती है. तो एनी काइंड. प्रिंटिंग, दिस इज अ वेरी कॉमन, यू ऑल नो दैट. क्योरिंग एंड हीट सेटिंग, दैट्स अ वेरी नॉर्मल. डिसाइजिंग, दिस इज अ वेरी नॉर्मल कि रिमूविंग द स्टार्च एंड ऑल दिस
coming out the normal stage of the fiber, that is known as a desizing. Okay, now what is the right answer for this? The right answer is the option C. Okay, so as option C, that is number 1, that is your you start with the singeing process. Okay, because firstly you have to make the fabric in a correct manner. Then there is a option say 6, that is your desizing. Then you desize the fabric. Then there is a 4th number, that is the scouring, because after the desizing you have to brighten up your fabric. And then number 3, that is bleaching, then printing, and then curing and heat सेटिंग. सो सिंजिंग इसलिए पहले स्टेज में आएगी क्योंकि आपको जिस भी फाइबर के साथ या जिस भी फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक के साथ आपको मतलब जो भी आपने उस पर सेलेक्ट किया है, आप उसको जब भी सेट करना चाहते हो तो पहले वो एक इक्वल शेप में होना चाहिए, ताकि आप उतने ही क्वांटिटी को यूज़ करो, उतनी ही क्वांटिटी को आप प्रोसेस करो. ओके, सो द राइट आंसर इज़ द ऑप्शन सी. Now come to the last question, that is the match the following, and the right answer it is like asking for the brand, process chart, trademarks and standard, and option are giving BIS, word, symbol, pen, pencil and pin and thread. So this is very clear to all of you and it is very understandable. The right answer is the B, that is a 3421. Brand is what? Brand is a symbol. Process chart is what? Process chart is your pen and pencil. Hopefully guys you have to remember this technique, so this is very clear. Trademark क्या होता है? What is the trademark? That is your word. Okay, and what is the standard? This is BIS. What is the full form of the BIS? That is very important. So this is your homework. You can just read by yourself. There are various standards are used in India for the food sector, for the textile sector, so you have to prepare for that. And thank you so much guys for watching this video, and if you want to be join our test series, please WhatsApp us in our WhatsApp number. The number is mentioned in the description section. Thank you so much. Keep updating with us. We are also uploading the next question answer series for the previous year section. Thank you so much.